let me have first thank my chair for this program, Dr. Khanna sir. He is the patron of our mentor of our Nephro, Euro and Transplant program. Our promoter, our visionary director, Dr. Manjar Kapadia and his better half, Dr. Nidhi Kapadia is here. Thank you for coming on the dais of this new program. Our transplant program head, Dr. Akash Shingana, along with the entire nephrology team, neurology team, and of course, the one for whom we have gathered together here, the real heroes in today's world, all the donors. Welcome you in Namaha for this unique kind of registration program. We started our organ transplant program 1 year before. We got approval on 16 January 2023, and just in the period of 1 year and little more, today the program is established. It's very well success. Today we have completed 17 organ transplants. Out of that, 16 are live kidney transplant and 1 deceased donor transplant. I am really happy to share we have lined up 5 live transplant in couple of months period. For deceased organ transplant donation, there are 35 recipients we have registered in Namaha Healthcare to receive the organ. Today, we assemble here to pay our gratitude, to pay our respect, honor and felicitate the extraordinary act of kindness, the generosity and the humanity, donating an organ, rather I will say donating a life. For many people, donation have different kind of meaning. For some people, donating single organ is a challenge. For some people, donating resources. For some people, consider donating time is superior form. But what we doctors consider, donating an organ, it is much beyond that. It is not only donating organ just itself, but it is a donating life and donating future to someone who really deserves. And it requires a lot of courage and generosity, humanity, empathy to take a decision in your program. We are here, such 17 heroes, to felicitate their act of kindness, generosity, and transform someone's life. I invite Dr. Akash Shingana. Before that, I will request Dr. Khanna sir to give us a glimpse of the situation in this western part of the Mumbai. Then started practice and today what we are doing, how it was necessary to launch an organ donation program and how it is came together. Khanna sir, please. Thank you, Dr. Chavan. Manjar Kapadia family, मेरे साथी कलीग्स जवान एंड जिनकी बदौलत ये ट्रांसप्लांट प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों को धन्यवाद देने से वंदन। ये बात सफ़ेद बता रहे हैं कि मैं काफ़ी बूढ़ा, 40 साल से तो मैं ये सबक में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स कई हॉस्पिटल में स्टार्ट हुए। ये जो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है, इसमें बहुत सारी मेहनत और मुश्किलात आती हैं, जिसको दूर करके धीरे धीरे जो हमारी यंग टीम है उन्होंने बैठ के ये ट्रांसप्लांट प्रोग्राम आज अपने सामने लाया। मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की थी तो नानावटी से लेके सूरत तक कोई डायलिसिस सेंटर भी नहीं था। किडनी स्पेशलिस्ट तो छोड़, ट्रांसप्लांट की तो बात ही नहीं कर सकते। डायलिसिस के लिए भी लोग साउथ में जाते, वहाँ से हम आगे बढ़ के आज इस हालात में आए हैं कि आज ट्रांसप्लांट अपने एरिया में ईजिली अवेलेबल है और ना ही जस्ट अवेलेबल है
बट अच्छी क्वालिटी का ट्रांसप्लांट अच्छे डॉक्टर्स के ज़रिए एंड रीजनेबली प्राइस ट्रांसप्लांट जो 14-15 लाख बाहर के बड़े हॉस्पिटल्स में होता है उसके बदले में रीजनेबली ट्रांसप्लांट का जैसे आपको शायद बताया इन्होंने कि डोनर जो है वो बहुत बड़ा एक स्टेप लेता है अपनी ज़िंदगी का, जिसे जैसे ये नमा हॉस्पिटल में नमन बिल्डर्स का, तो हम लोग भी नमन करते हैं डोनर्स को। 2 अक्टूबर से शुरू होता है दान उत्सव, वो पूरे देश में दान उत्सव मनाया जाता है और वो दान उत्सव में कोई पैसे देता है, कोई अपना टाइम देता है, कोई आइटम देता है, लेकिन जैसे इन्होंने बताया सबसे बड़ा दान अंगदान है, तो जो आप सब लोगों ने किया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नमन करना पड़ता है डोनर्स के लिए। उन्होंने अपनी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने फैमिली वाले की लाइफ समझी और इसीलिए डोनर का हम लोग ध्यान भी ज़्यादा रखते हैं, उसके टेस्ट वगैरह पहले से करते हैं, उसकी आगे भी हम लोग चाहते हैं कि उसके आगे फॉलो कीजिए। तो जैसे इन्होंने बताया था कि ट्रांसप्लांट प्रोग्राम 1.25 साल में ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ में एक ट्रांसप्लांट शुरू हुआ, जो कोई भी नए सेंटर के लिए एक प्राइड की जगह है। हम काफ़ी अपने आप को हम प्राउड मानते हैं कि हमने इतना फास्ट, इतना डेवलप करके इतनी अच्छी क्वालिटी और रिजल्ट के साथ हमने किया। वो सब पॉसिबल था क्योंकि आप लोगों ने हमारे पर फेथ रखा, हमारे पर विश्वास रखा कि नहीं ये डॉक्टर और ये टीम अच्छी है और वो हमारे रिलेटिव्स का ध्यान रखेंगे, हमारे पेशेंट्स का ध्यान रखेंगे, और इसीलिए हम आज उस स्थिति पर पहुंचे हैं कि हमारा ये ट्रांसप्लांट प्रोग्राम सक्सेसफुल है। तो ऑफ कोर्स जैसे इन्होंने कहा कि फैमिली और हॉस्पिटल वालों ने और पूरी टीम ने सपोर्ट किया, लेकिन सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है डोनर्स का। हम अपनी तरफ से थोड़ी हेल्प भी कई बार लाने की कोशिश करते हैं। हम एक फाउंडेशन रन करते हैं, उसके ज़रिए करते हैं। ये जो डोनर्स का आपका दूसरा एक अभी काम क्या है, आपको अगर कोई पूछे कि मैं डोनेट करूं या नहीं करूं, तो उसको आपको कॉन्फिडेंस से बोलना है कि नहीं डोनेट करो, कुछ नहीं होता। हमारी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आए किडनी डोनेट करने से, और इसीलिए आप लोगों को प्रोत्साहन देंगे कि हाँ आप भी किडनी डोनेट करो। तो ये एक हम बहुत सालों से कैंपेन रन करते हैं, असली हीरो कैंपेन। उन्होंने कहा ना आप हीरोज़ हैं, तो असली हीरो कैंपेन यही है कि जो डोनेट करता है वो असली हीरो है। बाकी शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन तो नकली हीरो है, जो देता है किडनी वो असली है। सो ये जो आपका दूसरा रोल है, जैसे कल को डॉक्टर आकाश बोले पेशेंट को कि हमको आप ट्रांसप्लांट कराओ, तो डरेगा उसका पेशेंट भी डरेगा। डोनेट करने के लिए कहेंगे तो रिलेटिव भी डरता है मैं डोनेट करूँगा, तो उसमें कई बार हम लोग आपके पास भेजेंगे, आप इनको समझाओ। तो वो रोल एक इम्पॉर्टेंट रोल है आप लोगों का कि भाई हाँ डोनेट करने से देने वाले को कुछ नहीं होता। सो ये एक इम्पॉर्टेंट आपका रोल है। ये मैं 40 साल में मुझे कई बार ये डोनर्स को फेलिसिटेशन प्रोग्राम में बुलाया गया, कई बार मुझे चीफ गेस्ट बनाया गया, लेकिन जो आज खुशी हो रही है इस मंच पे बैठने की, वो इसीलिए है कि ये अपना होम ग्रोन प्रोग्राम है, अपने एरिया का है, और एक हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट अहम दिन गिना जाएगा। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार भरा धन्यवाद हमारी तरफ से। एंड एट द सेम टाइम हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि आप डोनर को हम आगे भी उतनी ही केयर और इज्जत से ट्रीट करेंगे, क्योंकि आपने जो किया वो ज़रूरत से ज़्यादा किया। थैंक यू। Good wish to learn how this act of biggest donation happened. I request Dr. Akash Shingara to conduct this journey of felicitation of all our real heroes by sharing their experiences, sharing us how it was tough to take such kind of decision, how these people showed their courage, uniqueness to come forward to give a lease of new life to someone. Dr. Akash. जैसे डॉक्टर खन्ना ने जस्ट अभी आप सभी को वंदन किया, मेरा भी तहे दिल से नमन है सबको कि आपने, देखिए डॉक्टर खन्ना तो विश्व पितामह है किडनी डिपार्टमेंट के, नेफ्रोलॉजी के, तो उनके ऊपर तो विश्वास करना बहुत आसान है, मतलब रात को भी आंख बंद करके भी विश्वास कर सकते उस तरीके से। बट एक जवान नेफ्रोलॉजिस्ट को, मेरे जैसे छोटे बच्चे को अगर आपने इतना विश्वास दिखाया है, तो वो तो आपका जो लीप ऑफ फेथ है वो मैं कभी
वो मुझे और ज़मीन पे बैठ के करने में मदद करता है। इट मेक्स मी फील हम्बल्ड कि आपने इतना बड़ा लीप ऑफ फेथ किया। देखिए, बीमार व्यक्ति तो कभी भी डॉक्टर के पास जाके अपनी सेहत, अपना शरीर उसके हाथ में देता है, बट एक हेल्दी व्यक्ति होता है वो जाके अपने शरीर का पूरा विश्वास एक आदमी पर छोड़े, वो बहुत ही बड़ी बात है और ये एक हम्बलिंग फैक्ट है। तो थैंक यू फॉर दिस। और मैं शायद ट्रांसप्लांट करते समय सभी को कहता हूँ कि ट्रांसप्लांट सर्जरी ऐसी है जहाँ पे करते समय तो हम साथ में अलग अलग डॉक्टर पेशेंट के तौर पे जा रहे हैं, जब बाहर निकलते हैं तो हम एक एक्सटेंडेड फैमिली हो जाते हैं, तो आप हमारे परिवार का हिस्सा हो जाते हैं लिटरली। जिस तरीके से हम आगे भी फ्यूचर में बात करते रहते हैं, कनेक्ट करते हैं। सो जब अगर आपको कुछ रात को नींद नहीं आएगी तो हमें भी नींद नहीं आती है। सिर्फ ये मेरी खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूँ कि ट्रांसप्लांट पेशेंट के साथ इतना एक लगाव हो जाता है कि उनके जीवन में कुछ कठिनाई आती है तो हमारे जीवन की कठिनाई के तौर पे हम उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। मैं 2 मिनट ले लूँगा फेलिसिटेशन शुरू करने के पहले, क्योंकि ये बैकग्राउंड में जो चीज़ होती है ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो एक थोड़ा सिर्फ शेयर करना चाहूँगा। सिर्फ गिनाने की कोशिश नहीं करूँगा, बट सच में ये प्रोसेस शुरू हुआ था अक्टूबर 2021 में। आदित्य, करेक्ट मी इफ आई एम नॉट करेक्ट, जब से हमने ये पहले, उसके पहले तो हमारे इंटरनल डिस्कशन होते थे मेरे, डॉक्टर खन्ना के सर के, कि हम ये करते हैं। तो ये पहले कभी सोचा भी नहीं गया था कि हम इस एरिया में कुछ ऐसा ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम करेंगे। तो काफ़ी बड़ी चीज़ चाहिए होती है, बैकअप चाहिए होता है, हार्ट का सारे ब्लड बैंक फैसिलिटी का, तो काफ़ी सारी चीज़ों का बैकअप चाहिए होता है। तो वो इस एरिया में करना वो काफ़ी एक चैलेंजिंग स्टेप पहले से ही था। तो ये एक विजन पहले हमारे तीनों में से कन्विंस करके हमने फिर बाद में नमा अस्पताल के मैनेजमेंट को, डॉक्टर मुंजाल कपाड़िया को, आदित्य को, इंदिरा जी को बताया। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मानना ज़रूरी है कि डॉक्टर मुंजाल का अगर विजन नहीं होता, तो उनका अगर वो रुचि नहीं होता कि हाँ करके देखते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता। बिकॉज ये बहुत ही कठिन स्टेप है लीगली और ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। और इसमें अगर एक शेयर करूँ तो जिस प्रकार का एफर्ट का, टाइम का इन्वेस्टमेंट है, उस प्रकार की कमाई अस्पताल को नहीं होती है, ठीक है। सो ये बहुत ही फेयर अंदर की बात करें तो कोई भी अस्पताल मानेगा नहीं ट्रांसप्लांट करने के लिए, बहुत कम लोग मानेंगे, और जो इनको पैशन होगा वही करेंगे। तो दे शोड दैट पैशन एंड विजन एंड दे सपोर्टेड अस। तो तभी जो भी डिस्कशन होते थे, आदित्य, आई हैव टू थैंक यू, बिकॉज हमारे जिसमें जितना जोश था उतना उसमें भी था। तो उसका नाम कभी लिया नहीं जाता है, बट ही हैज बीन अ ड्राइविंग फोर्स इन दिस। हाँ, नहीं पैशन से उन्होंने, क्योंकि इसमें बहुत पेपर वर्क होता है। आई थिंक आई विल सपोर्ट हिम। जब लड़ाई जीतते हैं तो जनरल को मेडल दिया जाता है, लेकिन काम तो सारे फुट सोल्जर्स और उनके ऊपर वाले सब करते हैं। नाम खाली जनरल का आता है, फुट सोल्जर्स का उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो जिस प्रकार का ब्यूरोक्रेटिक वो फोर्स चाहिए था, विजन चाहिए था, पेपर वर्क चाहिए था, वो पहले आदित्य ने शुरू किया और फिर डॉक्टर मुंजाल के लाइजनिंग की वजह से, पहचान की वजह से, जो भी पुश की वजह से हमको 1 साल लगा ये परमिशन मिलने के लिए। उसमें बीच में 2-3 इंस्पेक्शन हुए। इंस्पेक्टर्स अपने मन की धुन से आते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, बट फॉर्चुनेटली सब एकदम एथिकली क्लीन तरीके से। हमने ब्लड बैंक नहीं थी यहाँ पे, सिर्फ ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को खड़ा करने के लिए ब्लड बैंक बनवाई गई, जिसके लिए अलग खर्चा किया गया और अलग रूम्स बनाए गए। तो जिस प्रकार का समय का, एफर्ट का, टाइम का इन्वेस्टमेंट था, वी रियली नीड टू थैंक दी एंटायर, मतलब जो ओनर्स की टीम है, जो मैनेजमेंट की टीम है, उसको एक्चुअली तहे दिल से थैंक यू। अगर ये विश्वास नहीं दिखाते तो पॉसिबल नहीं होता। सो वी रियली थैंक द नमा मैनेजमेंट फॉर दिस। और उसके बाद में आप लोगों का विश्वास, मतलब जिस तरीके से आपने आंख बंद करके विश्वास करके ये स्टेप आगे बढ़ा, वी रियली थैंक यू फॉर दैट। मैं हमारा जो देखिए, डोनर्स तो बाहर थे, जो रेसिपिएंट्स अंदर थे, आपके जो रिश्तेदार थे रेसिपिएंट्स, वो बताएंगे कि केटीयू के स्टाफ ने कितनी मेहनत से और कितने फ्रेंडलीनेस के साथ उनका ध्यान रखा था। तो वो केटीयू स्टाफ को भी याद रखना बहुत जरूरी है। जो किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट का स्टाफ था, वो कभी डोनर केयर में नहीं आया, वो रेसिपिएंट केयर में आया, बट वो पहले जाके बाहर ट्रेनिंग लेके आए। हमने दिल्ली से कुछ नर्सेस को बुलाया था, गंगाराम अस्पताल से, उन्होंने ट्रेन किया। और जिस तरीके से एक तो मनोज का है, उन्होंने हवन रखा था खुद अपने तौर पे कि ट्रांसप्लांट प्रोग्राम अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। सो ये तो कोई
कोई मतलब ये सोच रहे हैं ना कि आप कोई पेमेंट के थ्रू या किसी फीस के थ्रू, सैलरी के थ्रू ये फीलिंग्स नहीं आती। ये सब लोग अपने इमोशन से, मन से सारे इन्वॉल्वमेंट होके पूरे शरीर का कस निकाल के काम करते हैं। सो वी रियली थैंक यू ऑल्सो फॉर ऑल द एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क दैट यू पेड। ओटी स्टाफ से लेके केटीयू स्टाफ से लेके फार्मेसी से एवरीबॉडी, सबका फेलिसिटेशन हम करेंगे, बट एक जनरल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सच में आपके बिना ये पॉसिबल नहीं होता था। जैसे सर ने कहा, जनरल को क्रेडिट मिलता है, फूड सोल्जर्स को नहीं मिलता है, बट योर कंट्रीब्यूशन हैज बीन मोर इम्पोर्टेंट देन एनीबॉडी। अगर हम डोनर्स से शुरू करें, अनफॉर्चुनेटली आज जितने भी डोनर्स हुए उसमें से सभी नहीं आ पाए क्योंकि लाइफ की चैलेंजेस की वजह से सब आ नहीं पाए। तो हम पहले अगर लिस्ट में जो है यहाँ पे देखें, वीरश्री राणे जी को थोड़ा फेलिसिटेट करने के लिए स्टेज पे आगे बुलाएंगे। सो काही टेन्शनची गरज नाही आहे, म्हणजे बसून पण तिकडे पण करू शकतात। तुम्हाला काही बोलू शकता, बोलायचं असेल, नाही कोणाला बोलायचं असेल तर हे माईक घेऊन, माईक आहे नाही तर रसिका बोरडे, ते रसिका नाही आली माहित आहे, रसिका इज द रेसिपिएंट, त्यांची मुलगी आहे। ते जेव्हा 2 पॉइंट शेअर करू चालेल ना, काय असं नाही करायचं असेल तर नाही सांगणार। 3 वर्षापूर्वी पता चला कि किडनी का कुछ प्रॉब्लम था। अनफॉर्चुनेटली वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होके किडनी फेल हुआ और फिर आंटी ने आके अपनी इच्छा से किडनी डोनेट करने के लिए कहा। जैसे माँ तो हमेशा होती है, तन मन धन सबको, लिटरली उसका एग्जाम्पल हमारे आंखों के सामने है कि जब भी है बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होता है। तो ये उसका फिजिकल एग्जाम्पल हमारे आंखों के सामने। मैं आपको कुछ बोलना हो तो कभी भी कुछ शेयर करना हो तो ठीक है, कोई इशू नहीं। आंटी रो पड़ते हैं, मैं जानता हूँ, बट दे हैव बिकम सो क्लोज टू मी एज फैमिली आल्सो। रसिका मेरी छोटी बहन जैसी होगी, तो कुछ भी अगर उसको होता है तो बहुत दिल को चोट पहुंचती है। तो इसलिए आई प्रे कि आप दोनों को बहुत बहुत लंबी उम्र। इसके बाद हम शुजाउद्दीन शेख की तरफ जाते हैं, ठीक है। शुजाउद्दीन आपको आगे शुजाउद्दीन जी के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा बोलते नहीं है, बट ये छुपे रुस्तम है। ये एक बहुत ही बड़े रोमांटिक किस्म के आदमी हैं। तो उनकी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है, कविताएं लिखी गई है, और क्या रोमांटिक कविताएं लिखी गई है। इन्होंने ट्रांसप्लांट के पहले पता चला कि इनको किडनी स्टोन था, तो वो अपनी किडनी डोनेट कर सके इसके लिए उन्होंने स्टोन की सर्जरी करवाई। फिर उसके बाद में जाके उन्होंने अपनी किडनी डोनेट की अपनी बेटी को। सो ये देश में एक्चुअली देखा गया है हमारे रिसर्च में भी कि ज्यादातर महिलाएं डोनेट करती है, पुरुष कम डोनेट करते हैं। बहुत ही कम पुरुष होते हैं जो किडनी डोनेट करते हैं, और वो एक ट्रेंड को ब्रेक करने के लिए मैं आपको बहुत ही मतलब हार्टफेल्ट थैंक यू कहता हूँ। बट आपको 2 कविताएं आज सुनानी होगी इस स्टेज पे, ठीक है। उसके बिना आपको हम जाने नहीं देंगे आज, प्लीज। लिखाना माइक इधर। पंक्तियां हैं कि अच्छे अच्छे युगों में आए अच्छे अच्छे लोग, कि अच्छे अच्छे युगों में आए अच्छे अच्छे लोग, इस बेचारे युग में जन्मे हम बेचारे लोग, इस बेचारे युग में जन्मे हम बेचारे लोग, और सीमाओं की रेखा तोड़े आओ गले लग जाए, कि सीमाओं की रेखा तोड़े आए आओ गले लग जाए, उधर तुम्हारे लोग खड़े हैं इधर हमारे लोग। I will request Dr. Ridhi ji help. सर यहाँ पर और भी डोनर्स हैं जिनकी बहुत अच्छी कहानियां हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो आए नहीं है आज। अगले हमारे जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति यहाँ पे है वो है राधेश्याम जी, राधेश्याम जी शर्मा जी। थोड़ा आगे में आगे राजेश का बेटा है जिनको इन्होंने अपनी किडनी डोनेट की है। अभी इनकी फैमिली की स्टोरी थोड़ी, अगर मैं आप बुरा ना माने तो अगर 1-2 लफ्ज कहूँ, नहीं तो बहुत ही कठिन स्थिति थी। सबसे प्रॉमिसिंग 3 बच्चे हैं, हाँ
जो सबसे पढ़ा लिखा होनहार बच्चा था जो एम्प्लॉयमेंट के पहले, शिप की मर्चेंट नेवी के पहले जब टेस्ट कराने गया तब उसको पता चला कि उसकी किडनी खराब थी, बराबर है। तो वो तभी उनका ये इमेजिन कीजिए कि पूरे खानदान के जो आशाएं थी सब क्रैशिंग, मतलब नीचे गिर आ गई कि बेटा जो एक ही अच्छा था, जवान था, उसका हेल्थ का प्रॉब्लम आ गया। तो काफ़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के साथ, मुश्किलों के साथ ये आए हमारे पास। और हमारे जो एनजीओ के ये है चेयरमैन है भावेश जी, वो है नहीं फिलहाल हमारे पास, बट उन्होंने डे वन से प्रॉमिस किया था कि हम मदद करेंगे, और उस अस्पताल ने भी काफ़ी मदद की थी। और राधेश्याम जी को खुद को हार्ट की दिक्कत है, ये सब चीज़ों को बाजू में रखते हुए स्पेशल कंडीशंस लेके, फिटनेस लेके, टेस्ट करवा के फिर हमने इनकी किडनी लेने का डिसीजन लिया, एक्सेप्ट करने का डिसीजन लिया, ये ध्यान रखते हुए कि इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और आज राजेश बहुत अच्छी तरह से हेल्दी है। 1 साल हो गया हमारे ट्रांसप्लांट, हाँ सर, 9 महीना 9 महीना हो गया, और अभी वो काम करना शुरू कर दिया उसने। हाँ ठीक है। और बहुत मतलब ये डिफिकल्ट परिस्थितियां जो होती है, सिर्फ डोनेशन का वो डिसीजन छोड़िए। नासिक में घर है आपका, हाँ, तो वो बेच के, घर बेच के डोनेट करने की कोशिश करने वाले थे, और उनको पता था वहाँ पे कि इनकी परिस्थिति ऐसी है, तो उनको पैसे कम दे रहे थे, ये सब चल रहा था। तो हमने आपको, मैंने ये रिक्वेस्ट किया था ना, घर मत बेचेगा, हम मदद करेंगे आपको, ठीक है। तो वो उस स्थिति में से इन्होंने हमारी इनकी किडनी डोनेट करवाई है और ट्रांसप्लांट किया है। सो वी रियली थैंक यू राधेश्याम जी, आपको बहुत हमारा आप किसी को भी अगर 2 शब्द कहने हो तो बहुत अच्छा लगेगा हम सबको भी सुन के। तो अगर किसी को कुछ 2 शब्द कहने हैं तो बहुत सभी का प्रोत्साहन भी बढ़ेगा, सभी को अच्छा भी महसूस होगा। कभी भी बीच में हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं। राधेश्याम जी के बाद बिंदु जी है, बिंदु कुमारी जी। सो आपका ट्रांसप्लांट डॉक्टर नील सल्ला ने किया, मैं जानकारी नहीं रखता हूँ, बट आपकी सर का सर्जरी रिपोर्ट से हुआ सर। सबसे पहले शरीर देखे थे रॉकी बाद ऑफ नील है नहीं, हाँ। पूरी स्टोरी उसको ही पता है। करेक्ट। इनका भी काफी डिफिकल्टी से हुआ था, तो काफी मदद के बाद प्रॉब्लम आ गया था, तो केएचएम में लोग बच्चे को एक प्रॉब्लम आ गया था, तो केएचएम में उसको इमरजेंसी में एडमिट किए थे। तो सर ने पूछा, तो सर देखे, सर बोले कि लोग थे, वो गाँव से बिलोंग करता है बच्चा, हो मैं यहाँ अंधेरी में रहता हूँ मैं। तो सर बोले कि टेंशन मत लो, जो है हम लोग हेल्प करेंगे। तो उसमें भावेश जी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया हम लोग को। बाकी जो भी हम लोग थोड़ा किए, मेहनत करके सब हो गया, लेकिन सब ज़्यादा खन्ना सर का सपोर्ट रहा उसमें। और नील सर को तो खन्ना सर को नील सर के हैंड ओवर कर दिए, खन्ना सर नील सर हैंड ओवर कर दिया। नील सर ने भी जितना सपोर्ट किया वो मैं बता नहीं सकता हूँ, और अभी भी उनका चल ही रहा है। जो भी हमेशा, जब भी तो बोले सर, पहले भी बोले सर, पहले भी सर बोले आप लोगों को कि हमेशा फैमिली समझते हैं लोग, जिसको भी जिसका भी ट्रांसप्लांट किया है, तो सही बात है, हमेशा फैमिली समझते हैं, हमेशा बोलते हैं कुछ भी दिक्कत हो, कहीं भी रहो, फोन करो, तुरंत रिप्लाई देंगे हम आपको। कभी कुछ नहीं हुआ तो मैसेज करो, बिजी हैं तो आधे घंटे 1 घंटे में उनका रिप्लाई आता ही आता है, वो तो आप लोग को भी पता है सबको। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। खन्ना सर को बहुत प्रणाम करते हैं सर, इसे आशीर्वाद दीजिए और सब लोग का हेल्प कीजिए सर, आप लोग उससे सब लोग का भला होगा। भगवान तो सब तो देख ही रहे हैं, सब सबका कर्म। ठीक है, धन्यवाद सर। विमला में दो हमारे अगले जो डोनर है जिनकी हम फेलिसिटेट करना चाहेंगे वो है विमलाबेन दोडिया। विमलाबेन दोडिया ने अपने बेटे को, रंजीत दोडिया को, किडनी डोनेट की थी। और 8 महीना थे, 6 महीना थे, 6 महीना થઈ ગયા, બધું સારું ચાલે છે। અરે બાત તમે તો બધું આટલું બોલો છો, હવે આજે તો બોલવું જ પડે ને, આજે બોલવું પડે, આજે તો ના ચાલે બોલ્યા વગર। તમારો બધેનો આભાર. શું નામ?
आगे सर वो ભાવેશ મદદ ભાઈ. તમે બી બહુ મદદ કરે રાજેશના બે છોકરાઓ છે અને બહુ ક્યુટ છોકરાઓ છે. બહુ અત્યારે સારી રીતે જિંદગીમાં આગળ વધી રહ્યો છે અને હું જ્યારે પણ મદદ હશે ત્યારે ઉભા રહીશું. ઠીક છે, પણ સૌથી વધારે આમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ વ્યક્તિ કોણ? તમે ડોનેટ કરી તમે તમારા તમારા આગળ સાથ થેન્ક યુ. यहाँ पर सराजू निसा जी जरा आगे अगर आप आएंगे. इनका पोता था, अगर मैं इनके भी ट्रांसप्लांट डॉक्टर नील ने किए हैं. तो डॉक्टर नील आज है नहीं, आज उनका जन्मदिन है सर. आज आप उनको विश कर सकते हैं. आपको पता नहीं पता उनका ध्यान तो रखना पड़ेगा, हम लोग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. सलाम So, आपको, सलाम. ये दादी है, इन्होंने अपने पोते को किडनी डोनेट की है कि नहीं? डॉक्टर नीरज को कहूंगा आपको सम्मान करेंगे. अगर आप कुछ कहना चाहेंगे. आप कोई बोलना चाहोगे? ये बड़ी बात है कि घर की बात है. हाँ सर, आ जाइए. मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ. ये मेरी माँ है, मेरे लड़के को डोनेट किए, तो मैं उनका तो मेरे को ज़िंदगी दी है, मेरे लड़के को भी ज़िंदगी दी है. उनका तो मैं देख सकता हूँ. और हमारे रिश्ते की तो थोड़ा कंडीशन बेकार था, तो नील सर और खन्ना सर ने हमको बहुत सपोर्ट बताए हमको कि जरिए में जाओ, आप वहाँ जाइए, वहाँ से आपकी मदद होगी, वहाँ से सब हो जाएगा. तो अपना भावेश सर है, उनका तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ. उसने हमारे को बहुत फोटो ले रहे हैं आपके फोटो. बहुत उसने हमारे को मदद भी किया और वो बहुत हमारे को साथ दिए उनका. तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ. और नील सर तो आज भी हमारे लिए बड़े भाई के जैसे हैं. नील सर कि जो मैं अभी भी पढ़ाई करूँ तो उनको लगेगा कि कुछ अलग बोल दिया क्या. अभी भी मैं उनके पास में जाता हूँ तो मेरे को ये नहीं रहता फिक्र कि उनको मेरे को देने का ऐसे. आज भी मेरे को ऐसे ही मैं बोलता कि ठीक है आप मेरे भाई के जैसे हो. आज उनका जन्मदिन है तो उनके आयुष्य आपके आशीर्वाद से बढ़ जाए. बस मैं तो उनके लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि उनकी लंबी जिंदगी दे. इनकी सारी टीम को भी मैं बहुत दुआ करता हूँ कि सबकी दुआ उनके साथ में रहे और उनकी दुआ भी उनके साथ में. थैंक यू. अभी बाजू में खड़ा सर यहाँ पर. हमारे अगले जो डोनर है वो है फ्रीडा सिल्वन. फ्रीडा डोनेटेड हर किडनी टू हर ब्रदर. उनके भाई थे, भाई है जिनको इन्होंने किडनी डोनेट किए. विल्फ्रेड 10 साल से डायलिसिस, 15 साल 13 ईयर्स से डायलिसिस पे है. तो आज 3-4 महीने पहले इन्होंने किडनी डोनेट की थी और उनके भाई को आज एक नया चांस मिल रहा है अच्छी तरीके से, अलग तरीके से जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए, जीने के लिए. तो वी थैंक यू फ्रीडा आपके ये कंट्रीब्यूशन के लिए और आपके डोनेशन के लिए. डॉक्टर नीरज, मैं रिक्वेस्ट करूँगा You want to say please? मैं सबको थैंक्स बोलती हूँ कि यहाँ पर जिन्होंने मुझे विश्वास दिया कि तुम अच्छी रहेगी फ्यूचर में, उनको डॉक्टर्स को और नर्सेस को यहाँ तक आया. उन लोग भी बहुत अच्छी तरह मुझे बहुत देखभाल अच्छे किए थे. ये हॉस्पिटल ऐसे है कि बहुत अच्छे ट्रीटमेंट दे रहे थे, अच्छे देखभाल कर रहे थे. इसके लिए मैं बहुत थैंक्स बोल रही हूँ. हमारे लास्ट डोनर है जिनको मैं फेलिसिटेट करने के लिए डॉक्टर तेजस मेहता को इनवाइट करता हूँ. डॉक्टर तेजस मेहता हमारे हेड ऑफ जनरल मेडिसिन है. सो आई इनवाइट माधुरी गलस जो आई आ जाइए.
सो इन्होंने अपने हस्बैंड को किडनी डोनेट की थी। जैसे साथ से अभी तो खून का साथ हो गया, अभी तो ऑर्गन डोनेट कर दिया। अभी तो जैसे सारे हमारे जो लव है, जो बाकी सारे तो खून के रिश्ते थे, ये तो खून का रिश्ता ना होने के कारण इम्पोर्टेंट रिश्ता है हस्बैंड वाइफ का, मना नहीं करते। सब इनके वजह से हुआ है कि जैसे सब मुझे सब इनके वजह से आया, अभी सब हमारा रिश्ता घर के जैसा हो गया इनका। इनके वजह से मेरा सब दिल बढ़ गया और मैं ऐसे किया। थैंक यू। साथ किया मुझे। सर सो कुछ और भी डोनर से जो आज फिजिकली नहीं आए हैं, एक डॉक्टर लीला थापा जी है, नेपाल में है, फाल्गुनी जवेरी, रजनीकांत शेख, सुजाता श्रीवत्सन, रूपाली नेमाड़े, मनीषा बोले, लता पारेख, ये सारे लोग आज नहीं आ पाए, बट हम उनको हमारा थैंक यू व्यक्त करते हैं और हमारे सारे फीलिंग्स और जो प्रेयर्स हैं उनके फैमिली के साथ है। लता पारेख जी जो लास्ट डोनर थी उसके बारे में एक शब्द कहना चाहूँगा। ये एक कैडावर डोनर थी, मतलब इनकी ब्रेन में ब्लीडिंग होने की वजह से ब्रेन डेथ हुई थी और इनके परिवार वालों ने ये निर्णय लिया कि उनके दोनों किडनी, उनके अंग जो है वो डोनेट करेंगे। ये बहुत ही सेल्फलेस एक्ट था। देखिए, आपका डोनेशन तो कोई छोटी बात नहीं है, बट वो हमारे खुद के परिवार वालों के लिए था। ये जो उन्होंने किडनी डोनेट की थी, ये उनके परिवार वालों के लिए नहीं था, किसी और के लिए था। उनको पहचान भी नहीं थी ये किडनी या लिवर किसको गया था। उनको ये किडनी और ऑर्गन्स डोनेट किए गए और एक व्यक्ति ने 4 या 5 जिंदगियां बचाई है। सो ये आज का हमारा जो प्रोग्राम है, उससे हम ये भी एक आपको विनती करते हैं कि ये ऑर्गन डोनेशन का मैसेज जो है, ये जनरल पब्लिक में पहुंचना बहुत जरूरी है। और ये अगर समझो, अगर इतना ज्यादा ऑर्गन डोनेशन हो रहा होता हमारे देश में, तो आपको अपने परिवार वालों को किडनी डोनेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वेटिंग लिस्ट हमारे यहाँ पे 5-5, 7-7 साल, 10-10 साल का है। इसके लिए लिविंग डोनेशन इतने होते हैं, जबकि विदेश में 1-8 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर नंबर आता है। तो ये जनरल पॉपुलेशन में अवेयरनेस बढ़ना बहुत जरूरी है कि जलाने के बदले, दफनाने के बदले उसको डोनेट करना बहुत जरूरी है शरीर को। तो ये हो सके उतना जब भी हमारे कैजुअल टॉक्स में, परिवार में, गेट टुगेदर्स में हो, ये अगर आप मैसेज कन्वे करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही, हमारी वो एक सक्सेस हो जाएगी। वो ये मेरे लिए बहुत बड़ा थैंक यू हो जाएगा। और कुछ ना करें, बस इतना करेंगे, ठीक है। And I conclude this session and I will hand over the mic to Manoj ji. Thank you, Dr. Akash. All your stories are really touching and all of us are humble knowing the stories. और जो डिसीज डोनर है, डॉक्टर आकाश जी के बारे में बोल रहे थे, हम अपने हॉस्पिटल की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, we express our deepest respect, condolences to the families who came forward to save the lives. अभी थोड़े बातों में ये भी सामने आया कि जिनका फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं था और ऑर्गन डोनेशन बहुत ज़रूरी था, ऐसे सिचुएशन में हमारे सबके साथ में जो डोनर सामने आए, फाइनेंशियल डोनर सामने आए, ऑफ कोर्स ऑर्गन डोनेशन के बाद में अगर सब रिसोर्सेज साथ में लाके अगर ऑपरेशन करवाना है तो उसके लिए फाइनेंशियल डोनर का बहुत ज़रूरी होना होता है। और उस वक्त हमारे लिए सामने आए, हमारे पेशेंट्स के लिए सामने आए मिस्टर भावेश शाह, ही चेयरमैन ऑफ अ ट्रस्ट हु इज़ इन फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़, उनके डायलिसिस सेंटर भी है। उन लोगों ने, उनकी टीम ने पैसा खड़ा किया सोसाइटी की तरफ से एंड सेल्फलेसली दे डोनेटेड फॉर सच काइंड ऑफ ट्रांसप्लांटेशंस। एंड उनके डोनेशन की वजह से बहुत सारी सर्जरीज यहाँ पर हो सकी, उनके डोनेशन की वजह से बहुत सारे लोगों को लाइफ मिली है। हम सब लोगों की तरफ से जिनको डोनेशन प्राप्त हुआ, ऐसे फैमिलीज़ की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से, मेरे सब टीम की तरफ से, हम मिस्टर भावेश भाई और उनकी टीम के लिए, उनके मातोश्री ट्रस्ट के लिए डीपेस्ट रिस्पेक्ट एक्सप्रेस करते हैं एंड हम उनको एक्चुअली फेलिसिटेट करना चाहते हैं, उनके कार्य का सम्मान करना चाहते हैं। अगर उनके टीम में से कोई भी यहाँ पर आया हो तो प्लीज़ डायस पे आइए। कोई नहीं आया है
लेकिन आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल कंसर्न खन्ना सर आई थिंक वो मार्केट में उनका बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट में ना, तो 3:30 बजे तक तो फाइनेंशियल मार्केट है, उधर से ही कमा के वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थोड़ा टाइम 3:30 बजे तक तो माल उठना चाहिए। ऑफ कोर्स। तो हम अपना जो मैसेज है, जो रिस्पेक्ट है, अप्रिसिएशन है, उनकी तरफ जरूर पहुँचाएंगे एंड वी विल लुक फॉरवर्ड टू ट्रांसफॉर्म मेनी मोर लाइव्स फ्रॉम हिज फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी। ये सब करते वक्त लेट मी शेयर विद यू, जैसे कि खन्ना सर ने कहा कि बहुत सारे हाथ है जो पीछे से लगे हैं, ईच एंड एवरी सोल्जर यहाँ पर खड़ा हुआ था और उसके वजह से ये पूरा ट्रांसप्लांट प्रोग्राम खड़ा हो सका। लेकिन मुझे बताने में बहुत ही रिस्पेक्ट है। आई वेलकम डॉक्टर मुंजाल कपालिया सर, हु इज आवर रीजनल डायरेक्टर। Thank you for coming, sir. I was just sharing story of hard work behind the nephrology, urology team and how we developed the transplant center here. मुझे याद है हमें KTU बनाना था, किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर के लिए एक सेपरेट से रूम बनाना था। उस वक्त हमारा लेट नाइट काम चल रहा था, मेरी सारी टीम मेरे साथ में थी एंड हमें कुछ चीज़ों का टेस्टिंग करना था। रात में 10 बजे मैंने डॉक्टर आकाश सिंगाड़ा को कॉल किया और उनको कहा कि आप अगर आ सकते हो तो काम बहुत आगे बढ़ जाएगा। उस वक्त रात में 10 बजे डॉक्टर आकाश सिंगाड़ा सारे काम छोड़ के, अपना दिन भर का थकावट छोड़ के, अपने फैमिली को छोड़ के यहाँ हॉस्पिटल में आए, मेरी टीम के साथ खड़े रहे और उस वक्त हमने रात में सारे HVAC के टेस्टिंग किए। बहुत कुछ जो हमें स्वाब्स लेने होते, टेस्टिंग के लिए भेजने होते, सब कुछ निर्जंतुकीकरण हुआ है, वो सब देखने के लिए होता है। डॉक्टर आकाश सिंगाड़ा उस वक्त आए, हमें हेल्प किया। ऐसे अनगिनत प्रसंग हैं जिनमें डॉक्टर उमेश खन्ना सर का हमें गाइडेंस मिला। टाइम एंड अगेन हम जब थक जाते थे तो डॉक्टर उमेश खन्ना सर के 2 शब्द हमें एनर्जी देते थे, नए दौड़ने के लिए ताकत देते थे। उनका विजन, उनका कंसिस्टेंट एफर्ट्स और डॉक्टर आकाश का इन सब डिफिकल्टीज में साथ में खड़ा रहना कि नहीं करना ही है, वो सब की वजह से मेरी टीम को ताकत मिलती थी और हम दौड़ते थे और हम काम करते सकते थे। इस सब में अपने पर्सनल रिलेशंस भी इन दोनों ने अपने स्टेक पे लगाए। उनका जो सर गंगाराम हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश का ट्रेनिंग हुआ है एंड वहाँ पर उनके खुद के जो पहचान के रिलेशंस थे, जो अर्बन ट्रांसप्लांट में काम करते थे, उन लोगों को उन्होंने यहाँ पर बुलाया। उन लोगों के सपोर्ट से हमारे नर्सेज की ट्रेनिंग हुई, हमारे रेसिडेंट्स की ट्रेनिंग हुई and definitely that training has given a lot of insight and it helped us to transform the organ transplantation center, and that is the reason we have always been successful and there was no single infection or no deterioration or complication involved in the transplant post op management. ये सब काम के लिए I request entire nephrology team, please come forward. We wish to felicitate, appreciate, acknowledge your hard work and you are standing for the society. I request Munjal sir, please. Yes, we will complete that. I will request Dr. Akash to share the story. फाल्गुनी बेन, हमारी बात जुदा। फाल्गुनी जवेरी, आओ रे बेन। फाल्गुनी बेन एमना सन ने, उनके सन को, मिहिर जवेरी को किडनी डोनेट किया। मिहिर को अनफॉर्चुनेटली इतना सडनली ये सब हुआ था कि अचानक से अस्पताल में कौन आया, तभी पहली बार उसको पता चला। कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, अचानक से वो कुछ बुखार के लिए अस्पताल गया था, पता चला कि 15 या 16 क्रिएटिनिन था। तो पूरी लाइफ क्रैशिंग आ गई पूरे फैमिली के ऊपर। बहुत सारे प्लान्स थे बच्चे के, ये मैं शेयर नहीं करूंगा, पर्सनल चीजें ज़्यादा, बट आई थिंक दैट्स नॉट। सो काफ़ी सारे प्लान्स थे फ्यूचर के जो एकदम थक करके अचानक से आके रुक गए। तो ये बाकी जो डायलिसिस पे होते हैं उनको तो समय मिलता है प्रिपेयर करने का, सोचने का। इनके लाइफ में अचानक से ये आया और विद इन 2-3 महीने हमने किडनी ट्रांसप्लांट की थी और आज वो लड़का 1 साल हो गया और पढ़ाई कर रहा है आगे और
और सीए का सीए फाइनल ईयर में है और आगे इट्स ही इज गॉट अ न्यू चांस एट लाइफ के आगे लाइफ में और कुछ त्या डॉक्टरांकडून सपोर्ट ते म्हणजे साરું થશે મારા દીકરાને જિંદગી લાઈફ બચી ગઈ છે એના માટે થેન્ક યુ. सभी चीज में मैं एक व्यक्ति को थैंक यू कहना भूल गया. एक है नौमान करके एक छोटा सा साइड में कोई तो सबकी बात करते रहता है, सबकी गाली करते रहता है, ठीक है. तो ये सबसे आगे उसके बिना कुछ नहीं होना है. इस तरीके का वो एक पार्ट है ये पूरे मशीन का. तो नौमान को हम थैंक यू कहते हैं सिंसियरली. Thank you, Dr. Akash, for remembering this everyone contributed. And let me share with this forum कि मेरे टीम में सब लोगों ने जो काम किया है, we are going to appreciate each and everyone with a dedicated certificate for their contribution. और वो इवेंट हम जल्दी से ले लेंगे. आज के दिन में हम ऑर्गन डोनर के लिए फोकस कर रहे थे एंड जो हम डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे थे थोड़ी देर पहले, नेफ्रोलॉजी टीम जिनके विजन की वजह से, जिनके हार्डवर्क की वजह से, दिन रात खड़े रहने की वजह से और अपने जो दायरा है उसके आगे निकल के, हम सबको मालूम है कि उसमें कुछ ज़्यादा इनकम होता नहीं है, ये सब छोड़ के कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द सोसाइटी, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द ह्यूमैनिटी, इन लोगों ने अपना टाइम एनर्जी दिया, सामने आए. इतना ही नहीं, हमें भी कन्विंस किया कि चलो हमें ट्रांसप्लांट करवाना है. ऐसे टीम को उमेश खन्ना सर की लीडरशिप में, डॉक्टर आकाश के साथ में, डॉक्टर केवी के साथ में जो उनका टीम है किडनी एसोसिएट्स का, उनको मैं सामने बुलाना चाहूँगा. मेरे डायरेक्टर डॉक्टर मुंजार कपड़िया सर से उनका फेलिसिटेशन करना चाहूँगा. प्लीज़ कम डॉक्टर आकाश स्टेज पे आइए. केवी दवे आज नहीं है लेकिन उनका नाम लेना मैं सही समझता हूँ. डॉक्टर नील भी नहीं है. डॉक्टर निकिता प्लीज़ आइए. डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, डॉक्टर चिंतन, डॉक्टर अंकित प्लीज़ आइए. आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, आपका इस कॉज के लिए खड़ा होना, आपका टाइम एनर्जी देना, अपने दायरे से बाहर निकल के सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सर कुछ करना चाहिए? ये जो टीम है इसको हम किडनी एसोसिएट्स के नाम से हमारी ये कंपनी है जिसमें किडनी के सारे क्वालिफाइड हम 8 नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जो ये प्रोग्राम और हमारा किडनी के पेशेंट्स को देखने का पूरा काम करते हैं. माई सेल्फ उमेश खन्ना, आकाश सिंगाड़ा, डॉक्टर निकिता पवार, वीरेंद्र चौहान एंड अंकित मोदी साहब आए नहीं हैं, केयूर दवे एंड चिंतन गांधी. ये 8 लोग मिलके, नील सरदाना, ये 8 लोग मिलके हम किडनी एसोसिएट चलाते हैं. ज़्यादा करके इस हॉस्पिटल में हम लोग 3-4 लोग ज़्यादा आते हैं, पर हम लोग नहीं होंगे तो ये लोग आके देखते हैं. तो राउंड सबका होता है, हम एक दूसरे से डिस्कस करके ट्रीटमेंट पूरी प्लान करके करते हैं. तो ये 8 लोगों की टीम है किडनी एसोसिएट्स जो किडनी के सारे पेशेंट्स इंक्लूडिंग ट्रांसप्लांट देखते हैं. इसमें कोई किसी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कोई कम कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन हर एक अलग अलग हॉस्पिटल जो इस सबब में है उसमें देखते हैं. तो ये नमा हॉस्पिटल में हर कोई अटैच है और इसीलिए हम इतना आगे काम कर पाते हैं. कंट्रीब्यूशन हर किसी का है, क्योंकि अगर समझो कुछ कठिनाई आती है किसी केस में, तो मैंने समझो ग्रुप पे हमने डिस्कस किया, तो वहाँ से आ जाता है ये कुछ नया आया है कि ठीक है ये इलाज कीजिए. तो भले आपका इलाज लिखने वाला मैं या डॉक्टर खन्ना रहेंगे या डॉक्टर निकिता रहेंगे, बट कंट्रीब्यूशन सभी लोगों का होता है, दिमाग सभी लोगों का होता है. तो ये एक यूनिक चीज़ है जो यूजुअली होती नहीं है, बट एक परिवार के जैसे हम मिलके काम करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आपस में भी हम एक जैसे कि जो बॉन्ड हुआ है वो एक अलग ही बॉन्ड है. तो और बेस्ट एडवांटेज है कि एक किडनी डॉक्टर के ओपिनियन के बदले 8 किडनी डॉक्टर्स के ओपिनियन उसको कैसे पेशेंट को मैनेज करना हो. तो ये एक बेनिफिट हो गया जो
पूरे बॉम्बे में कहीं नहीं है इतनी बड़ी टीम जो एक पेशेंट के लिए सब कुछ मिल के करती है, वो एक एडवांटेज। इस मौके पर मैं शेयर करना चाहूँगा सर, आपके काम का इम्पोर्टेंस इतना बड़ा है। हमारे एक पेशेंट आपको, डॉक्टर आकाश को गणपति पापा कहते हैं। क्या कहा जाए इसके बारे में? वो तो मेरे पेट के वजह से तो ये कहना ये चाहिए कि आज से खाना बंद शाम को। वो विघ्नहर्ता भी कहे जाते हैं गणपति, तो उनका विजन उस तरीके से, ये आपका हम्बलनेस है, आपने इसे लिया, लेकिन उन सब परिवारों के लिए आप विघ्नहर्ता के रूप में। थैंक यू रियली थैंक यू। अगला कंट्रीब्यूशन मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। वंस ट्रांसप्लांट नक्की होता है तो उसके बाद में ट्रांसप्लांट सर्जन्स को बुलाया जाता है, एंड वी आर फॉर्चुनेट टू हैव अ बिग ट्रांसप्लांट टीम, एंड उन ट्रांसप्लांट टीम को, सर्जन्स को हम यहाँ पे एक्नॉलेज करना चाहते हैं, उनका फेलिसिटेशन करना चाहते हैं। ये सर्जरी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, एंड इस सर्जरी करते वक्त जितना कष्ट लेना होता है, डिफिकल्ट है, उतना ही उसके बाद में पोस्ट ऑप केयर के लिए अवेलेबल रहना, कॉम्प्लिकेशंस के लिए होने नहीं देना, कुछ है उसका विजन सुपरवाइज करना, ये सब कुछ जो है मेरी ट्रांसप्लांट टीम, मेरे सर्जन्स करते हैं। दिस पीपल आर वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड पर्सन इन द वर्ल्ड, व्हाट आई कैन से। सबसे मुश्किल काम जो है, ये लोग अपना काम से उनको रास्ता दिखाते हैं, काम करते हैं। तो ऐसे टीम को जो आज मेरे सामने है, उनमें से मैं नाम लेना चाहूँगा। हमारे जो चीफ सर्जन हैं डॉक्टर अमर कुमार पाटिल, डॉक्टर सूरज सूचक, डॉक्टर अमित गाला, डॉक्टर नीरज शाह, डॉक्टर साकेत साठे, डॉक्टर श्रीकांत बड़वे एंड मेनी मोर और सर्जन। आज उन सब के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर नीरज मेरे सामने है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे डायरेक्टर को, डॉक्टर नीरज को एंड सारे सम्मान, फेलिसिटेशन एंड थैंक यू फॉर बीइंग अवेलेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ सर्जरीज। डॉक्टर नीरज कुछ बोलना चाहेंगे आप? गुड आफ्टरनून एवरीवन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सब डोनर्स को मेरा नमन। डेफिनेटली डोनेट करना ये बहुत आसान है अगर कुछ चीज़ देनी है तो, लेकिन एक अपना खुद का अंग जो नॉर्मल चल रहा है वो किसी और को देना, ये सबसे बड़ा दान है, और इसीलिए आप सब लोगों को नमन उसके लिए। एक सिंपल चीज़ बताऊंगा, हमारे घर में शादी डिसाइड होती है तो लड़का लड़की डिसाइड होते हैं, उसके माँ बाप डिसाइड करते हैं कि ठीक है इनके गुण मिल रहे हैं, अच्छे से शादी करनी है। वैसे ही आप हॉल ढूंढते हैं, हॉल अच्छा है, बड़ा अच्छा होना चाहिए, सब फैसिलिटी होनी चाहिए, और फिर भटजी आता है, भटजी बोलता है सब चीज़ों का लिस्ट दे रहा हूँ, ये रेडी होना चाहिए, बस वो लेके आना। बस यही काम सर्जन का है। मेहनत सारी नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं, आप लोग तैयार होते हैं डोनेट करने के लिए, आपके पेशेंट को तैयार किया जाता है सब मेडिसिन के साथ, और फिर ऑपरेशन थिएटर में हमारे सामने आते हैं, हम ऑपरेट करते हैं। ऑपरेशन एक शादी के जैसा ही है, करो अच्छे से करो, आगे क्या होगा वो नेफ्रोलॉजिस्ट देख लेंगे। पर नहीं, ये डेफिनेटली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्जरी है, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन की किडनी निकाल के हम एक ऐसे पेशेंट में डाल रहे हैं जिनमें काफ़ी बीमारियों की वजह से काफ़ी तकलीफें होती है, तो उसका जोड़ जो करते हैं, आर्टरी का जोड़ या खून की रक्तवाहिनी का जोड़ करते हैं, उसकी पेशाब की नली को पेशाब की थैली से जोड़ते हैं। आगे बीमारियों की वजह से या कोई और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हम कोशिश पूरी करते हैं कि अच्छे से अच्छा हो, तैयारी सब करते हैं अच्छे से अच्छा हो, दवाई दी जाती है, लेकिन भगवान कभी कभी ऐसा करता है कि नहीं होता है, कुछ चीज़ें नहीं ठीक चलती। वही चीज़ को तुरंत पिकअप करके फिर से अगर कुछ करेक्ट करना है तो करेक्ट करना। इसके लिए ओटी का स्टाफ का अवेलेबिलिटी, आईसीयू के स्टाफ का अवेलेबिलिटी, केटीयू, नेफ्रोलॉजिस्ट, सारी एक टीम है, ये टीम का कंट्रीब्यूशन है, और इसीलिए नेफ्रोलॉजी यूरोलॉजी टीम, ये ट्रांसप्लांट की टीम है। आई थिंक और कोई सिस्टम में इतना अच्छा टीम नहीं होता है। ये जैसा हम लोग, जैसा आप बोलते हैं हस्बैंड वाइफ, वैसा हम लोग हस्बैंड वाइफ, हम झगड़ते भी हैं और साथ में काम भी करते हैं। सो आई ऑलवेज आई थैंक द हॉस्पिटल ऑल्सो, बिकॉज इतना अच्छा सिस्टम, ओटी अवेलेबिलिटी, ऑपरेशन थिएटर में सारा फैसिलिटी, को जो चीज़ नहीं थी वो तुरंत लाके देना, बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया है, कॉस्ट वाइज, फैसिलिटी वाइज और हेल्प वाइज, सब कुछ किया। सो आई रियली थैंक द हॉस्पिटल, नेफ्रोलॉजी टीम एंड आप सब। थैंक यू डॉक्टर नीरज। इसके बाद में आप सब लोगों के सामने मैं शेयर करना चाहूँगा
कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रांसप्लांट के लिए पीछे खड़े होते, कभी सामने ही नहीं आते। उसमें से कुछ नाम है ब्रेन स्टेम डेथ कमेटी, एक फिजिशियन का कमेटी होता है। अगर कोई ऑर्गन डोनेशन करना चाहता है तो सच में ये डोनर है, ये सही है, ये डोनेशन हो सकता है कि नहीं, इसका सर्टिफिकेशन करने के लिए, ब्रेन डेथ का सर्टिफिकेशन करने के लिए कमेटी होता है। उस कमेटी में मेरे फिजिशियंस उसके मेंबर है, वो लोग न्यूरोसर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, ये सारे लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं इसे सब काम के लिए। इसके अलावा जो पेशेंट का केयर करना होता है, फिटनेस देना होता है सर्जरी के लिए, उनकी तबीयत संभालनी होती है सर्जरी के वक्त और बाद में भी, इस काम के लिए जो सारे मेरे फिजिशियन फ्रेंड्स है और जो रेडियोलॉजिस्ट है, जो पैथोलॉजी टीम मेंबर है, उन सब का मैं यहाँ पर नाम लेके एक्नॉलेजमेंट शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव हमने बुलाए थे, कुछ इमरजेंसी की वजह से उनके कुछ और पेशेंट देखे जा रहे हैं उनकी तरफ से, तो आ नहीं पाए हैं, लेकिन मैं नाम लेके जरूर एक्नॉलेज करना चाहूँगा। डॉक्टर तेजस मेहता, डॉक्टर हीना त्रिहान, डॉक्टर श्वेता गुप्ता, डॉक्टर अनुज मेहता, डॉक्टर जसबीर वालिया एंड ऑफ कोर्स हमारे डायरेक्टर डॉक्टर रितिका पाड़िया जो लैब की हेड है, इनका भी मैं कंट्रीब्यूशन एंड उनका सपोर्ट एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। इनके बाद में जो पर्दे के पीछे हमेशा रहते हैं और कभी सामने आते ही नहीं है, ऐसे एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट्स, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, भूल तज्ञ जिसे कहते हैं, शायद आप उनको कभी देखते नहीं हैं, लेकिन उनके बिना ये सर्जरी हो भी नहीं सकती है। पेनलेस करना, अपने जीवन में जो सच का दुख है, जो पेन है, वो रिमूव करने का काम एनेस्थीसिया की टीम मेंबर करते हैं, एंड इट इज नॉट सिंपल एनेस्थीसिया। लेट मी शेयर विथ यू, ट्रांसप्लांट के लिए जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और स्पेशलिस्ट स्किल वाले होते हैं। उन सारे टीम मेंबर का हम यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट करना चाहते हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं उनके काम का। डॉक्टर योगेन भट्ट एंड डॉक्टर कल्पेश शाह जो दोनों टीम लीड है इस टीम के, उनका यहाँ पर मैं नाम लेके आप सबकी शुभकामनाएं उनके तक पहुँचा दूंगा। आज वो कुछ काम की वजह से, सर्जरी की वजह से आ नहीं पाए। इसके बाद में सबसे जरूरी मैं समझता हूँ हमें एक्नॉलेजमेंट देना चाहिए, जिनके वजह से हम ये ट्रांसप्लांट प्रोग्राम कर पा रहे हैं। ऐसे जो विजनरी लीडर्स है उनके बारे में मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। एज ए यूनिट हेड, बिजनेस हेड, जब मुझे पूछा गया कि ये ट्रांसप्लांट प्रोग्राम करना चाहिए क्या, मेरे दो जवाब थे। यस, ये करना चाहिए एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, लेकिन इफ़ यू आस्क मी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, शायद कभी ये प्रॉफिट बनाएगा ही नहीं। इसमें जो लागत लगती है इन टर्म्स ऑफ मैन, मनी, टाइम और सब प्रोसेस, इसके वजह से ये शायद करना हमारे जैसे हॉस्पिटल के लिए अभी शायद ठीक नहीं है। दैट वाज माय ओपिनियन गिवन टू माय डायरेक्टर्स, एंड उस सिचुएशन में मेरे डायरेक्टर्स, मेरे विजनरी, आई एम रियली प्राउड ऑफ टू वर्क विथ हिम, माय एंटायर टीम इज रियली प्राउड ऑफ टू वर्क विथ हिम। उन्होंने ये डिसीजन उस वक्त लिया, इट डजंट मैटर, ऐसे सिचुएशन में हम खड़े नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। हर चीज पैसे में काउंट नहीं होती है, हर चीज आपके एफर्ट के हिसाब से कितना रिटर्न आ रहा है इसमें काउंट नहीं होती। देयर इज समथिंग वी नीड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड द सोसाइटी। और हमें ये भी सोचना चाहिए, शायद आज इन लोगों पे ये सिचुएशन है, ऐसा तो नहीं है ना कि कल हम पे ये सिचुएशन नहीं आएगी। हम ये स्टेप नहीं लेंगे तो और कौन लेगा। इन विचारों से प्रेरित होके उन्होंने ये डिसीजन लिया कि यस, कितना भी खर्चा हो, कितना भी मुश्किलें हो, हम ये करेंगे। और उस वक्त से, जैसे डॉक्टर आकाश कह रहे थे, 2021 में हमने स्टार्ट किया, उस वक्त से हम काम पे लग गए। माय एंटायर टीम, आदित्य, माय नर्सिंग टीम, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, एवरीवन वाज सो मच इन्वॉल्व। और जब हम तक जाते थे, डॉक्टर मुंजाल मेरे डायरेक्टर हमें विजन देते थे कि नहीं ऐसा करना है, इस तरीके से रास्ता निकलेगा, ये अटकेगा। बहुत सारी मुश्किलें थी, बहुत सारा स्ट्रक्चरल चेंजेस करना था, रूम्स अलग तरीके से बनवाने थे, HVAC सिस्टम रीडिजाइन करना था, खर्चे इसमें इन्वॉल्व थे, आर्किटेक्ट लगने वाले थे, उसके इंजीनियर्स लगने वाले, सबको बुलाया गया, काम करवाया गया। एक मोमेंट पे इंस्पेक्शन में गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने बोल दिया कि ठीक है आप ब्लड अरेंज करते हो, लेकिन जब तक आप ब्लड बैंक शुरू नहीं करोगे तब तक हम आपको परमिशन नहीं देंगे।
तो उस सिचुएशन में हमें ब्लड बैंक शुरू करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स, बहुत सारे अप्रूवल्स या DSA लेने होते हैं, वो सब कुछ किया गया। उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, वो किया गया। उसके बहुत सारे इंस्पेक्शंस एंड एग्जामिनेशंस होते हैं, वो किए गए, लोग अपॉइंट किए गए, ब्लड बैंक चालू हुआ। उसके बाद में फिर से नया इंस्पेक्शन आया गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने कहा नहीं आपका MPCB का जो है वो काम पूरा नहीं हुआ है, जब तक वो नहीं होगा हम नहीं करने देंगे। फिर से हम काम पे लग गए। उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे 15 लाख रुपए खर्च करना पड़ा, वो MPCB की परमिशन लेने के लिए। That was something surprising। किसी को शायद ये पता भी नहीं होगा कि ट्रांसप्लांट प्रोग्राम करने के लिए MPCB का क्या रिलेशन है, बट गवर्नमेंट की कंडीशन आपको करना है, नहीं तो नहीं देंगे परमिशन। हमने वो भी किया। खर्चे के लिए कभी पीछे नहीं देखा, लेकिन खर्चे से ज्यादा जो हमें उनका विजन पसंद आता है, कितने सारे जीवन बदल जाएंगे, कितनी सारी जानें बच जाएगी। और हम तो सिर्फ पैसे में सोच रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपने खुद का अंगदान किया है, ऑर्गन डोनेशन किया है, उनके सामने हमारा काम कंट्रीब्यूशन का है। इस तरीके के विचार रखने वाले मेरे डायरेक्टर डॉक्टर मुंजाल, उनके बेटे डॉक्टर रिद्धि कपाड़िया, उनका हम सब की तरफ से हम ऋण अदा करना चाहेंगे, ऋण व्यक्त करना चाहेंगे, उनके काम का सम्मान करना चाहेंगे, फेलिसिटेशन करना चाहेंगे। आई रिक्वेस्ट हम सब में से सबसे सीनियर डॉक्टर उमेश खन्ना सर, प्लीज एक डॉक्टर मनोज तो एम्प्लॉई है उनके, तो ये सब कहेंगे, बट इसमें से एक भी शब्द गलत नहीं है। ये जो वाक्य उन्होंने यूज किया एक्चुअली में उन्होंने बोले हुए हैं कि पैसे के लिए सब कुछ नहीं किया जाता। सो एंड आज भी कुछ भी मुझे भी मांगना होता है, तो शायद मेरी खुद की अस्पताल होती तो मैं पहले 2 बार सोचता कि ये खर्चा करना चाहिए या नहीं चाहिए। मैं उनको जाके कुछ पूछता हूँ तो तुरंत अगर तुझे लगता है कि ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के लिए जरूरी है तो कर। सो दैट इज हाउ इट इज विदाउट थिंकिंग द implications, cost implications. Truly a visionary, no doubt about it, and this is not bothering you all. दो शब्द इनके मुंह से सुनना बहुत जरूरी है। First of all, thank you everyone for coming. Today is not about Namaha, it is not about me, it is not about Dr. Manoj, it is about our brave families. Very often patients हमें कह जाते हैं कि डॉक्टर आपने इनकी जान बचाई। I'm sure urologists after transplant also say आपने जान बचाई, इन्होंने जान बचाई, इन्होंने जान बचाई। So वो तो हमारी ड्यूटी है that we perform our duty। पुलिसमैन को बोलते हैं, फायर फाइटर को बोलते हैं, एम्बुलेंस वालों को बोलते हैं, सबकी ड्यूटी है। बस there is only one selfless act मेडिकल फील्ड में, जहाँ करने वालों को कुछ नहीं मिलता, खाली रिस्क होती है पूरी लाइफ की। एंड नॉट जस्ट ऑपरेशन के बाद पूरी जिंदगी भर रिस्क रहती है, और वो है कोई भी ऑर्गन डोनर। जो कोई भी अपना ऑर्गन देता है, इट इज द मोस्ट नोबल एक्ट एनीवन कैन डू। अपने लव्ड वन के लिए खुद की जान ऑलमोस्ट रेडी टू सैक्रिफाइस कर, ये नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकते। और उसके लिए ऑल ऑफ अस वी वांट टू सल्यूट यू एंड थैंक यू कि आपने इतने लोगों को इंस्पायर किया, एंड टू योर फैमिली मेंबर्स, आप इतना सेल्फलेस एक्ट कर पाते हैं। जो आसान है बोलना, पेपर में पढ़ना इजी है, जब एक्चुअली इतना बड़ा ऑपरेशन करना होता है खुद के ऊपर, क्या इमोशंस हो सकते हैं हम सोच भी नहीं सकते। सो हाथ जोड़ के आप सबका सम्मान। ये ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का, ये आपकी सैक्रिफाइस सबसे बड़ी है, बट बिहाइंड द सीन्स छोटी छोटी सैक्रिफाइस सबने की है। स्टार्टिंग विथ आवर ग्रेट नेफ्रोलॉजी लेड बाय डॉक्टर खन्ना सर, आकाश, केयूर, डॉक्टर निकिता एंड एवरीबडी एल्स। पहले जब आए थे आकाश से, मुंजाल ट्रांसप्लांट भी वांट टू स्टार्ट, हाँ करेंगे, नो बिग डील, क्या है। बट जब यू स्टार्ट टू थिंक कि भाई व्हाट इज ट्रांसप्लांट,
क्या क्या लगता है, क्या क्या गवर्नमेंट परमिशन लगती है, क्या क्या गलत हो सकता है। करने जाओ कुछ अच्छा लेकिन नाम इतना खराब हो सकता है इसमें कि भाई क्यों रिस्क लेना। तो बोला कि क्या क्या लग सकता है, क्या क्या रिस्क ले सकते हैं। तो जब उन्होंने बोली कि ये चीज़ गलत हो सकती है और इनमें कुछ नहीं रहता, थोड़ा तो डर लगता था कि भाई सही रास्ते पे जा रहे हैं, जैसा हॉस्पिटल चल रहा है चलने में। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू कम टू नो दैट यहाँ पे और कोई रिस्क लेने वाला है नहीं। और यहाँ से साउथ बॉम्बे जाना, अंधेरी जाना, हिंदुजा जाना, इट्स नॉट इजी। सो दैट वाज द स्टार्ट। और वहाँ से चालू करके वी हैंडेड ओवर टू आदित्य, मनोज। हर एक चीज में मतलब 2-2 दिन पे नए नए झटके देते गए और नए नए चेक साइन करवाते गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वी हैव रीच्ड दिस फेज। When it comes to surgery and all, we have these doctors who look after you, but we also have very very good surgeons. उनको भी कुछ नहीं मिलता ट्रांसप्लांट, एक्सेप्ट कि वो रिस्क लेते हैं कि भी कुछ गड़बड़ हो गया तो इसमें तो बहुत बुरा नाम हो जाएगा। नॉट ओनली कि भाई चलो जो पेशेंट है वो, बट लेकिन डोनर को कुछ हो गया तो मतलब अच्छा खासा पेशेंट आया है तुम्हारे पास, हेल्दी डोनर उसी को कुछ, वो रिस्क लेना इज वेरी डिफिकल्ट। सब यूरोलॉजिस्ट नहीं ले पाते वो रिस्क। सेकंड थिंग, जब हमने कैडेवरी ट्रांसप्लांट किया वो तो कभी भी रात में भी करना पड़ सकता है। 2 बजे रात में ऑपरेट करना किसी के लिए इजी नहीं है। तो वेरी वेरी थैंकफुल टू सच टीम ऑफ सर्जन्स। अगेन बिहाइंड द कर्टन्स इवन मोर थैंकफुल टू आवर एनालिस्ट। डॉक्टर कल्पेश वाज नॉट हियर ड्यूरिंग द प्रोग्राम, सो बिग थैंक्स। 2 OT साथ में चला ना, उसमें से एक पेशेंट विद सो मेनी रिस्क फैक्टर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिस दैट, किडनी, सब कुछ, एक चीज तो होती नहीं किसी को। एंड टू टेक दैट रिस्क फॉर बोथ द टीम्स, 8-8 घंटे बैठना, 6-6 घंटे बैठना। कभी कभार ये ऐसी सर्जरी है कि बार बार एक बार कभी कॉम्प्लिकेशन तो वापस जाके अंदर वापस सेकंड टाइम भी करना पड़ता है। सो संडे, मंडे, सैटरडे नाइट, अपना पूरा वीकेंड, पूरे वीक के बाद ऑपरेट करने के बाद भी उनकी टीम हाजिर रहती है। Even post surgery for all their care and the intensive care team, big thank you to you. Always smiling. To our great nursing team, led by Pooja, our matron, our excellent OT team, ICU team and our intro team, very very big thank you to them. उन लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है ट्रांसप्लांट के लिए। एक साइड पे सिजेरियन करके 2 घंटे के बाद ट्रांसप्लांट करना, फिर रात में मॉनिटर करना, फिर डोनर का करना। अगेन बोलना इजी है बट इट इज नॉट इजी इन प्रैक्टिस। उनके भी फैमिलीज हैं, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, सब छोड़ छाड़ के यहाँ बैठे हैं। एंड फॉर दैट थैंक यू फ्रॉम माय साइड। In the ward, our RMOs leading the way, and even with Dr. Akash and all, to learn all these new protocols, to keep this line of communication open, to constantly update everybody, छोटी छोटी चीजें, कॉम्प्लिकेशन जल्दी पिकअप करके, ताकि इतनी बड़ी सर्जरी के बाद वो किडनी चली ना जाए। Okay, so thank you to them। और नोमन भी थोड़ा बहुत काम कर लेता है, ठीक ठाक ही काम कर लेता है, तो उसके लिए भी बात नहीं। Ketan Bhai Pharmacy, Dr. Riddhi and the entire diagnostics team, and especially Aditya and Manoj. कभी कोई थैंक यू तो बोलेगा नहीं, खाली गाली सुनने के लिए हो दोनों इधर। But from my side, thank you for this and all the Thank you, sir. We are really touched with your kind words and appreciation, and this really gives us a lot of strength to work even better. अभी डॉक्टर कल्पेश शाह जो हमारे एनेस्थीसिया टीम के चीफ है आए हैं। I request him to come in front and केतकी प्लीज एक फ्लावर रखे देना। डॉक्टर मुंजाल सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि both of Dr. Riddhi and Dr. Munjal sir kindly felicitate Dr. Kalpesh Shah. Thank you.
आज यहाँ पर मीडिया भी हमारे साथ में प्रेजेंट है, तो मीडिया का रीच बहुत बड़ा होता है। आपके माध्यम से मैं सारे कम्युनिटी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऑर्गन डोनेशन इज़ अ रियली बिग थिंग। स्वतः के जो लिमिट है उसके बाहर जाके दूसरे का जीवन बदलना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए रियल करेज चाहिए, काइंडनेस, जेनरोसिटी, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन वैल्यूज़ जिसके पास है वो सामने आता है, एक डोनर बनता है, और वही लोग इस जीवन में सच्चे मायने में हीरोज़ है। आप हमेशा इनका सम्मान आपके शब्दों सुमन से कीजिए, और आपको विनती है कि ये डोनेशन का जो स्पिरिट है आप सोसाइटी की तरफ लेके जाइए, समाज में इस डोनेशन के लिए प्रेरित कीजिए। ऑर्गन डोनर बनना बहुत मुश्किल बात नहीं है, बस किसी भी हॉस्पिटल में या JTCC के माध्यम से आपका ऑर्गन रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर नहीं किया ऑर्गन रजिस्ट्रेशन तो कोई बात नहीं, जब सिचुएशन आएगा सामने उस वक्त आपके लिए या आपके फैमिली मेम्बर के लिए आपने जस्ट स्टैंड लेना है। हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन टीम है या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट है उनको जस्ट बताना है हमें ऑर्गन डोनेशन करने की इच्छा है, बाकी सब कुछ किया जाएगा। और ये प्रोसेस 100% लीगल तरीके से ही की जाती है अपने देश में। हमें बड़ा गर्व बताने के लिए इसमें कोई उल्टा सीधा होने की गुंजाइश अभी नहीं है। देयर इज अ सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी गवर्नमेंट की तरफ से इस्टेब्लिश, वो तरीके से की जाती है, तो आप ये आगे लेके जाइए। लास्ट में मैं ये कृतज्ञता पूर्वक कहना चाहूँगा, हम सब लोग बहुत कुछ काम करते हैं जीवन में, लेकिन हर बार सक्सेस नहीं मिलती है। बहुत बार मिल जाती है, लेकिन बहुत समय ऐसा होता है कि हमने सब कुछ रखा है वहाँ पर, सब कुछ रखा है, बहुत काम किया, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस उसी वक्त मिलती है जब उसकी मन की इच्छा हो। वहाँ पे कोई एक सुपर पावर है, कोई है जो हमारे कार्य को ब्लेसिंग्स देता है, आशीर्वाद देता है, तभी हमें सक्सेस मिलता है। बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं मेरी टीम के साथ में, हम सब लोगों के साथ में उस शक्ति को नमन करते हैं और हमारे कार्य को ऐसे ही आगे भी यश देते जाए, सक्सेस देते जाए, ये मानते हैं। अब हमारे हाथों से और जीवन को उन्नति मिलती रहे, आरोग्य का मंत्र आगे बढ़ता रहे और लोगों के जीवन में खुशियाँ आते रहे, ऐसी शक्ति हमें प्रदान करे और हमारे कार्य को यश दे। इतना बोल के मैं रुकता हूँ और वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर नोमान को बुलाता हूँ। On behalf of NAMA, I want to thank all the selfless donor and their families, NAMA's consultant nephrologist, urologist, physician and the radiologist for taking out their time for this event. And we would like to conclude this event, but before leaving, please enjoy the refreshments and thank you. विनती है कि 2 से 8 अक्टूबर के बीच में दान उत्सव मनाया जा रहा है, जॉय ऑफ गिविंग वीक। इस ऑर्गन डोनेशन के बारे में अगर इन 8 दिनों में ज़्यादा प्रमोशन दी जाए तो बहुत सारे लोग आगे आके ऑर्गन डोनेट करने में जाएंगे। सो देयर इज दिस चांस अवेलेबल, जो जॉय ऑफ गिविंग वीक, ये इसमें नमा हॉस्पिटल विल रिक्वेस्ट द मीडिया to promote organ donation because this is the best gift